مدینہ کی وہ سیاہ رات جب وحی کا سلسلہ تھم گیا اور رسول خدا کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ فضاؤں میں ایک ایسا سناٹا تھا جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ لوگ خاموش تھے مگر دلوں میں سازشیں پل رہی تھیں۔ ابو سفیان کی پیشکش ہو یا منافقین کے بدلے ہوئے چہرے، علی سب دیکھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ اگر میں وہ ظاہر کر دوں جو میرے سینے میں ہے تو تم گہرے کنویں میں لٹکی ہوئی رسیوں کی طرح کانپنے لگو گے۔ دنیا نے سمجھا کہ علی ڈر گئے۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نہج البلاغہ کے خطبہ 4 سے 7 تک کے ان حقائق کو جانیں گے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے فریب کے لبادے چاک ہوئے، کیسے علی نے بجو کی طرح غافل ہونے سے انکار کیا اور کیسے شیطان نے لوگوں کے سینوں میں بسیرے کیے۔ یہ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے، حکمت اور بصیرت۔ اگر آپ نے پہلے 2 ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر ضرور جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ حضرت علی علیہ السلام کی اس دور اندیشی کا ثبوت ہے جو انہوں نے فتنوں کے درمیان دکھائی۔ ہماری ہی بدولت تم نے گمراہی کی تاریکیوں میں ہدایت پائی اور بلندی کا مقام حاصل کیا، اور ہماری ہی رہنمائی سے تم ذلت کی کالی راتوں سے باہر نکل آئے۔ وہ کان جو حق کی پکار نہیں سنتے وہ بہرے ہو جائیں۔ جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند آواز ہدایت کو سن کر بہرا بنا رہا، وہ میری دھیمی آواز کیسے سنے گا؟ وہ دل جو ہمیشہ خوف خدا سے دھڑکتا رہا ہے، اسے اب اطمینان مل جانا چاہیے۔ مجھے تم سے ہمیشہ غداری اور بے وفائی کا اندیشہ رہا تھا، اور میں نے تمہارے دھوکے بازی کے لباس کے پیچھے تمہاری اصل حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ یہ تو دین کا پردہ تھا جس نے مجھ سے تمہیں پوشیدہ رکھا تھا، لیکن میری نیت کی سچائی نے تمہارے ارادوں کو مجھ پر ظاہر کر دیا۔ میں تمہارے لیے حق کی راہ پر اس وقت ثابت قدم کھڑا رہا جب تم گمراہی کے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس وقت تمہارا کوئی راہ پر نہ تھا، اور تم کنواں تو کھود رہے تھے مگر تمہیں پانی میسر نہ تھا۔ آج میں ان خاموش حقائق کو زبان دے رہا ہوں جو بیان کرنے کی بھرپور قوت رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اس شخص کی رائے بھٹک جائے گی جو میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جب سے حق مجھے دکھایا گیا ہے، میں نے کبھی اس کے سچا ہونے میں شک نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے اپنی ذات کے لیے خوف محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں جاہل غالب نہ آ جائیں اور لوگ گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ قرآن سورہ طٰہٰ آیت 67۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ یاد رکھو، جسے یقین ہو کہ اسے پانی مل جائے گا، اسے پیاس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ وہ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو حرکت کرتا دیکھ کر اپنی جان کے لیے ڈر گئے تھے، بلکہ ان کے خوف کی اصل وجہ یہ تھی کہ کہیں لوگ اس جادوگری سے متاثر ہو کر گمراہ نہ ہو جائیں اور اس فنکاری کی وجہ سے باطل حق پر غالب نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر تسلی نہیں دی کہ تمہاری جان محفوظ ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا دعویٰ سچا ثابت ہوگا۔ قرآن سورہ طٰہٰ آیت 68۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا۔ چونکہ ان کا ڈر حق کی شکست اور باطل کی جیت کے بارے میں تھا، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اسی لیے انہیں فتح حق کی ضمانت دی گئی۔
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मकसद ये वाज़े करना है कि मेरा खौफ भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था। आपको अंदेशा था कि तलहा और ज़ुबैर जैसी जानी पहचानी शख्सियात के सियासी मौक़िफ़ से पैदा होने वाली उलझन में आम मुसलमान कहीं सिराते मुस्तकीम से भटक न जाएं। इस खुतबे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक निहायत बारीक नुक्ता समझाया है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादू दिखाया गया तो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरी धोखा था। बिल्कुल इसी तरह जंगे जमल के मौके पर जब तलहा और ज़ुबैर ने मौला के सामने सफ़ आराई की तो लोगों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। मौला अली अलैहिस्सलाम यहाँ समझा रहे हैं कि उनका इज्तिबा यानी मुगालता बिल्कुल मूसा के सामने मौजूद जादू जैसा था। वो जादू हकीकत को छुपा रहा था। मौला को अपनी शहादत का डर नहीं था, बल्कि इस बात का दुख और फिक्र थी कि लोग इन शख्सियात के नाम पर कहीं गुमराह ना हो जाएं। अब हम खुतबा 5 शुरू कर रहे हैं। ये खुतबा उस वक्त दिया गया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बैत की पेशकश की। ए लोगो, फितने की इन लहरों को नजात की कश्तियों के ज़रिए चीरते हुए निकल जाओ, तफर्रुक़े की राह से मुंह मोड़ लो और फ़ख्र गुरूर के ताज उतार फेंको। कामयाब वही है जो परों के होते हुए उड़े, यानी जब उसके पास ताकत और मददगार हों, वरना वो खामोशी से बैठ जाए ताकि लोग चैन से रह सकें। ये खिलाफत की तलब उस वक्त एक गदले पानी की तरह है, या इस नवाले की मानिंद है जो निगलने वाले का दम घोंट दे। जो फल को उसके पकने से पहले तोड़ता है वो ऐसा ही है जैसे किसी और की ज़मीन में खेती बाड़ी करने वाला। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मैं हक के लिए आवाज़ उठाऊं तो लोग कहेंगे कि इसे इक़्तिदार का लालच है, और अगर मैं खामोश रहूं तो कहेंगे कि वो मौत से डर गया। अफसोस, इन तमाम नशेब व फराज के बाद जो मैंने इस्लाम की खातिर देखे हैं, क्या मुझ पर ऐसा गुमान किया जाता है? खुदा की कसम, अबू तालिब का बेटा मौत से इस कदर मानूस है जितना एक शेरख्वार बच्चा अपनी माँ के दूध से होता है। मेरे सीने में वो छुपा हुआ इल्म है कि अगर मैं इसे जाहिर कर दूं तो तुम गहरे कुएं में लटकी हुई रस्सियों की तरह थरथराने लगोगे। इस नाजुक मोड़ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का सुकून आपकी आला पॉलिसी और दूरअंदेशी का सबूत था, क्योंकि अगर इस वक्त मदीना जंग का मरकज़ बन जाता तो इसकी आग पूरे अरब को अपनी लपेट में ले लेती। मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जो इख्तिलाफ शुरू हो चुका था वो हद से बढ़ जाता और मुनाफिकीन को अपनी साजिशें कामयाब करने का पूरा मौका मिल जाता। ऐसी सूरत में इस्लाम की कश्ती ऐसे भंवर में फंस जाती जहां इसका तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता। तारीख गवाह है कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अगर इस वक्त जंग छिड़ गई तो इस्लाम की नश्व नुमा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत उन्हें इस कदर अजीज़ है कि एक शीरख्वार बच्चे को भी अपनी माँ के दूध की इतनी तड़प नहीं होती जितनी मुझे मौत से मुलाकात की है। याद रखो, बच्चे की वाबस्तगी तो एक कुदरती जबिल्लत है जो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर अल्लाह के वलियों की मौत से मोहब्बत रूहानी है जो कभी ज़ायल नहीं होती। जैसे एक प्यासा कुएं की तरफ लपकता है या कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी मंजिल पाकर खुश होता है, मेरे लिए मौत की तलखी भी वैसी ही लज्जत का बायस है। इसीलिए जब इब्ने मुलजिम ने आप पर कातिलाना हमला किया तो आपने फरमाया, मैं तो उस चलने वाले की तरह हूँ जो मंजिल पर पहुँच गया, या इस तलाश करने वाले की तरह जिसने अपनी मुराद पाली। आपने खिलाफत की हवस को गदले पानी से तशबीह दी, जिसे ज़बरदस्ती निगलने वालों के हल्क में वो नवाला फंस कर रह गया। वो ना उसे सही से संभाल सके और ना ही उसे छोड़ने पर तैयार हुए, जैसा कि उनकी इल्मी व दीनी गलतियों से जाहिर होता है। आप फरमाते हैं, अगर मैं खिलाफत का कच्चा फल तोड़ने की कोशिश करता तो ये बाग उजड़ जाता और मुझे भी कुछ हासिल ना होता।
जो लोग दूसरों की ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं वो ना तो इसकी हिफाजत कर सकते हैं और ना ही सही वक्त पर इसे पानी दे सकते हैं। जो मुझे लालची या मौत से डरने वाला समझते हैं वो बताएं कि मैं किस मैदान जंग से भागा हूं। हर छोटा बड़ा मार्का मेरी बहादुरी का गवाह है। जो शख्स तलवारों से खेलता हो और पहाड़ों से टकराता हो वो मौत से नहीं डरता। सुनो, मेरी खामोशी की वजह वो इल्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने में रखा है। अगर मैं उसे जाहिर कर दूं तो तुम हैरत ज़दा और परेशान हो जाओगे। कुछ दिन सब्र करो, तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे कि इस्लाम के नाम पर कैसे कैसे लोग नमूदार होंगे और कैसी तबाही मचाएंगे। मेरी खामोशी बिला वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो गहरे माने छुपे हैं जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। जब अबू सुफियान ने अमीरुल मोमिनीन को मदीना की गलियों को सवारों और प्यादों से भर देने की पेशकश की तो ये इस्लाम के लिए एक नाजुक लम्हा था, मगर मौला अली ने कमाल बसीरत से काम लेते हुए इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आप किसी भी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो उम्मत में इंतशार का बायस बने। आपने मुस्तकबिल के फितनों बनु उमैया की तरफ इशारा किया जो इस्लाम का नाम लेंगे मगर अमल उसकी रूह के खिलाफ होगा। मौला का सुकूत दरअसल इस्लाम की बुनियादों को महफूज करने के लिए था ताकि दुश्मन दीन के खात्मे का दावा ना कर सकें। अब हम खुतबा 6 शुरू कर रहे हैं। ये खुतबा उस वक्त दिया गया जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया गया कि वो जंग के लिए तलहा और ज़ुबैर का पीछा ना करें। खुदा की कसम, मैं इस बज्जू की तरह नहीं हूँगा जो मुसलसल पत्थर मारे जाने पर भी सोने का बहाना करता रहता है, यहाँ तक कि उसका शिकारी उसे ढूंढ निकाले या घात लगाने वाला उस पर काबू पा ले। बल्कि मैं हक़ की तरफ कदम बढ़ाने वालों की मदद से हक़ से मुनहरिफ होने वालों पर हमेशा ज़रब लगाता रहूँगा, और मैं फरमाबरदारों की मदद से गुनाहगारों और शक में पड़े हुए लोगों से उस वक्त तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरी मौत का दिन ना आ जाए। खुदा की कसम, जिस दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस दिन से लेकर आज तक मुझे मेरे हक़ से मुसलसल महरूम रखा गया है। इस खुतबे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक निहायत दिलचस्प मिसाल दी है। बज्जू के बारे में मशहूर है कि जब कोई उसके बिल के बाहर पत्थर मारता है तो वो अंदर दुबक के सोने की अदाकारी करता है। वो समझता है कि दुश्मन चला जाएगा, मगर नतीजा ये निकलता है कि दुश्मन उसे आसानी से पकड़ लेता है। मौला फरमा रहे हैं कि बेखबरी गुनाह है। मैं दुश्मन की सफाराई से गाफिल नहीं रह सकता। अगर दुश्मन जंग की तैयारी कर रहा हो और मैं अमन का बहाना करके घर बैठ जाऊं तो ये इस्लाम के लिए तबाहकुन होगा। खुतबे के आखिर में मौला का ये कहना कि मैं मुसलसल अपने हक से महरूम रखा गया उनके दुख की अक्कासी करता है। उन्होंने ये दुख दीन की खातिर बर्दाश्त किया, मगर अब जब बातिल ने तलवार उठा ली थी तो खामोशी खियानत थी। मौला के नज़दीक इस मौके पर खामोश रहना बुज़दिली और दीन के साथ बददयानती के मुतरादिफ था। अब हम खुतबा 7 शुरू कर रहे हैं। इन लोगों ने शैतान को अपने तमाम मामलात का मालिक व मुख्तार बना लिया है और शैतान ने भी उन्हें अपना शरीके कार समझ लिया है। शैतान उनके वजूद में इस तरह रचपस किया है कि उसने उनके सीनों में अंडे दिए और वहीं से अपने बच्चे निकाल लिए हैं। अब वो शैतान के बच्चे उनकी गोद में रेंगते हैं और उनके सीनों में परवरिश पा रहे हैं। वो शैतान उनकी आंखों के जरिए देखता है और उनकी ज़बानों के जरिए कलाम करता है। इस तरह शैतान ने उन्हें गुनाहों की लहरों पर सवार कर दिया है और झूठी बातें उनके लिए आरास्ता करती हैं। उनका अमल उस शख्स जैसा है जिसके अफ़ाल में शैतान की शिरकत हो और जो बातिल ही की ज़बान बोलता हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इन मुनाफिकीन के बारे में फरमाते हैं जिन्होंने आपकी खिलाफत के दौरान आपकी मुखालिफत की कि वो अमल में शैतान के शरीक और उसके मददगार बन चुके हैं। शैतान ने भी उनसे ऐसी दोस्ती कर ली है कि उनके वजूद को अपना ठिकाना बना लिया है और उनके सीनों में बस गया है। वो उनके सीनों में अंडे देता है और वहीं से अपने बच्चे निकालता है, यानी बुरे ख्यालात उनके दिलों में परवान चढ़ते हैं। अब वो शयातीन उनकी गोदों में रेंगते और पलते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब वो शैतान ही की आंखों से देखते हैं और उसी की ज़बान से कलाम करते हैं। इस तरह शैतान ने उन्हें गुनाहगारी के रास्ते पर डाल दिया है और उनके लिए बदसूरत कामों को खूबसूरत बनाकर पेश किया है।
ان کا حال اس شخص جیسا ہے جسے شیطان نے اپنے اقتدار میں شریک کر لیا ہو اور وہ اپنی زبان سے صرف جھوٹ ہی بولتا ہو۔ اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے شیطانی غلبے کو نہایت خوفناک مگر حقیقی انداز میں بیان کیا ہے۔ مولا کے مطابق شیطان پہلے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انڈے دینا، اور پھر وہاں اپنا گھر بناتا ہے، بچے نکالنا۔ آخرکار وہ انسان کی بصیرت اور گویائی، دیکھنے اور بولنے کی قوت پر قابض ہو جاتا ہے۔ جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے اور زبان وہی بولتی ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ یہ خطبہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو حق جاننے کے باوجود دنیاوی مفاد میں اندھے ہو کر شیطان کا آلہ کار بن گئے۔ انڈے دینے کا مطلب دل میں غلط خیال کا پیدا ہونا ہے، اور بچے نکلنے سے مراد اس کا پختہ ارادہ بن جانا ہے۔ آخری درجہ وہ ہے جہاں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے اور وہی بولتا ہے جو باطل اس سے بلوانا چاہتا ہے۔ مولا نے بتایا کہ منافقین کی مخالفت ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکے تھے۔ سامعین محترم، آج ہم نے ان خطبات میں حق کی بصیرت اور باطل کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ وہی دور تھا جب اسلام کی تاریخ کا ایک انتہائی کربناک باب جنگ جمل رقم ہو رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مولا علی علیہ السلام نے اس نازک موڑ پر بھی صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہماری یہ علمی گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 4 میں ہم خطبہ 8 اور 9 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جنگ جمل کے عین معرکے میں مولا علی علیہ السلام کس طرح زبیر ابن عوام کے دعووں کا جواب دیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کو اپنی زندگیوں کا مشعل راہ بنائیں تاکہ ہم بھی فتنوں کے دور میں ثابت قدم رہ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔